Ladies and gentlemen, are you ready to shift the gears and get into another immersive story of life, another transformative journey of another person? Yes? Yes. Awesome. This man, when I met with him, he was such a nice gentleman with that typical Mumbaikar, Punekar vibe, a typical IT professional. However, he did something which I dreamt of doing but never could do. You know what is that? How many of you are still in your jobs? Are you still in your jobs and you're still trying to become an entrepreneur? Yes. So when I was an engineer turned employee, the only thing that came to my mind is that to become an entrepreneur, I have to leave the 9 to 5 race so that I can do a 5 to 5 race. Yes, that's 5 p.m. to 5 a.m. Alright, super. So I thought that I have to leave my job to become an entrepreneur. But this guy found a wonderful sweet spot between just becoming an employee and living his passion and finding his enlightening spirit within. Are you ready to enlighten the spirit within? Yes, are you ready to find that sweet spot of balancing things in life? Yes. Now this gentleman has the mission to help 1 lakh common people live a life of financial abundance, prosperity, happiness and fearlessness. Can you guess the name? Rohit! Ladies and gentlemen, put your hands together to one and only Rohit Gupta! First of all, thank you Sri Maya for the awesome introduction. You don't know your true potential. These were the words from a father to a 16-year-old boy. And that boy used to think that it is something related to motivation that his father is trying to give. But that innocent 16-year-old boy was not knowing that it is the ultimate truth of life. 20 years later as well, he is still trying to undiscover his true potential because he knows that he has so much boundaries to surpass and much more heights to achieve. And that person is none other than the person standing in front of you, I, Rohit Gupta, a proud member of Tegan community who is learning from the likes of Sagar, Rahat and whole community. So this was my father and this was me way back. I was not knowing what I was meant to be. But in the journey I started becoming. I'll tell you about my journey first. So how many of you want to work on 100% potential of yours? Can I have your yes? Yes! Sabka yes nahi aaya? Yeah. How many of you want to work on more than 100% potential of yours? Yeah. How maza hai? So my old thinking, a typical Indian mindset, a middle class mindset. क्योंकि जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेते हो ना, so you have a typical mindset. क्या करना है? स्कूल में पढ़ाई करना है, चाइल्डहुड, देन कॉलेज कंप्लीट करना है, एंड देन उसके बाद एक जॉब करनी है, बिकॉज आपको अपने घर भी तो चलाना है. सिर्फ एम्बिशंस नहीं होते, राइट? एंड मिडिल क्लास लोगों के शायद एम्बिशंस होता ही नहीं है. दे हैव बीन टोल्ड इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरेट करो एंड उसके बाद जॉब पे जाओ. दैट्स द नॉर्मल माइंडसेट. एंड आई वाज आल्सो हैविंग द सिमिलर माइंडसेट. आई वाज एंजॉयिंग माय लाइफ जस्ट लाइक अ नॉर्मल मिडिल क्लास गाय. जॉब मिल गई थी, पैसा आने लग गया, चलो एंजॉय करो लाइफ. देन द लास्ट थिंग इज गेट रिटायर्ड एंड डाई वन डे. Most of the people will not even remember you that you will even exist. They might remember you for few days, few months, but उसके बाद क्या? Nobody. You didn't exist. आपकी कोई identity नहीं है because you are living life for your own. And we as coaches have a higher responsibility. My new thinking. This was me, my daughter, February 2022.
I got my new thinking from this date, 19th February 2022. I hold my daughter for the first time. She was only 1.5 kg. Everybody said that she will be going to incubator and she will be having so many things. But I had the total belief on myself and she was a fighter. Nothing happened to her. She was in the normal room. Everything was fine. And that was the spirit I got, to be a person that you are and you have to explore that potential. So that was the thinking that I got, that I need to do something special for her so that she doesn't live the same life that I was expecting for myself. My family will not live the same life. How many of you think that you want to have a different life for your family at least? अपने खुद के लिए तो नहीं, family के लिए तो सब लोग चाहते हैं, right? So you want to adopt this new thinking? So I'll tell you how you can explore your true potential. So May 2022, I started watching this digital industry very closely. And I was watching this digital industry closely. मुझे बहुत अच्छा लगा, यार क्या बात है, जो आता है वही सिखाना है, उसके पैसे मिलने वाले हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी। मैं कुछ स्टार्ट करूंगा वर्कशॉप, 1-2 लोग आएंगे, 3 लोग आएंगे, ऐसा ऐसा करके 1.5-2 साल में करोड़पति। कितने लोगों ने ऐसा सोचा है? ऑनेस्टली बोलना। I want to see all the hand. मुझे पता है सबका आंसर ये था ही, right? So this was me. But जब स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक करो, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की डेफिनेशन क्या है? टीवीएम में आने के पहले फेसबुक पेज पे पोस्टिंग करो, कोई मैसेज देखेगा आपका और वर्कशॉप में आ जाएगा। 10 लोग आएंगे, उसमें से 1 क्लोज हो जाएगा। नॉर्मल माइंडसेट। आई वाज आल्सो हैविंग द सेम माइंडसेट, बट हुआ कुछ नहीं। मैंने पोस्टिंग करी, मैं रेगुलर पोस्टिंग भी करता था। आई वाज थिंकिंग यार मैं तो कमिटेड हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे लोग आएंगे। एंड पहले वर्कशॉप किया, उसमें एक फ्रेंड आया एंड ही डिडंट वर्क फॉर मी। मुझे लगा यार क्या हो गया, व्हाई इज नॉट माइंड। फिर आई डिड द सेकंड वर्कशॉप में तो कोई भी नहीं आया। मुझे लगा कि यार कुछ प्रॉब्लम है क्या, लेकिन फिर मुझे लगा कि 6 ने बोला करते रहो, राइट। सब लोग का आंसर यस होगा, राइट। सब लोग यही बिलीव करते होंगे, मैंने भी यही बिलीव किया था। 3rd वर्कशॉप किया, कोई नहीं आया। 4th वर्कशॉप किया, कोई नहीं आया। मैं अकेला था, पूरा वर्कशॉप कर रहा था। 2 घंटे का वर्कशॉप मैंने अकेले किया है पूरा। सो आई वॉज कंसिस्टेंट देयर ऑल्सो, बट उस समय मैं एक चीज भूल गया था कि शायद हो सकता है सिद्धार्थ ने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला हो। हम लोग को ये भी समझना पड़ेगा, हम लोग ने, भगवान ने दिमाग दिया है, राइट, वी शुड यूज इट। सिर्फ सुनना नहीं है, हमारे को अपना यूज भी करना है, राइट। So I started using my brain and then I started thinking कि what is in it, कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मैं इतना ओपनली उसे प्रमोट नहीं कर पा रहा था। What is the reason behind it? And from there I started undiscovering 6 steps to be successful in any industry. It's not about coaching, आप कुछ भी और करते हो, you are in digital industry, you are any other thing, you can be successful if you are following these 6 steps. This is my step, this is my understanding. I know some people might not resonate, but this is what I can share with you all. First step is authority. कोच तो बन गया था, मैं मई में इंडस्ट्री देखी और जून में मुझे लगा मैं कोच बन जाऊंगा। Do you think it is so easy? Anybody can become a coach? But सबको ऐसे ही लगता है स्टार्टिंग में, right? मुझे एक सेल्फ डाउट था, so I started working on the self doubt कि मुझे क्या करना चाहिए। And that was the first thing that I got is कि मुझे अपना मार्केट में यूनिकनेस बनाना है। एंड हाउ आई विल बिल्ड द यूनिकनेस, क्योंकि प्रॉब्लम यह है मार्केट में, एक पॉलिसी बेचता है, एक इंश्योरेंस बेचता है, वो भी अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइजर बोलता है, बट इज ही अ फाइनेंशियल एडवाइजर? नो। एंड आई डिडंट वांटेड टू बी इन दैट सेगमेंट ऑफ द मार्केट जहां पे मुझे ऐसा ट्रीट किया जाए, राइट। सो दैट वाज द थिंग दैट पुल्ड मी। एंड मैंने अपनी सबसे पहले बुक कंप्लीट करी, दैट इज रिटायर अर्ली एंड रिच, and that was under the guidance of Mr. Kedar. Thank you so much for that. Second thing was to build the authority was completing my Chartered Wealth Manager. Chartered Wealth Manager और बुक जब मैंने कंप्लीट करी तो मेरे जो लोग थे मेरे साथ में, they were experienced enough. 10-15 years से कोचिंग इंडस्ट्री में थे, 10-15 years से फाइनेंशियल इंडस्ट्री में they belong. And I'm very proudly saying कि I was the first person in both the places to complete my book and Chartered Wealth Manager, जबकि मैं उस इंडस्ट्री से था भी नहीं। And people were attempting it multiple times. I've seen that people have not even multiple attempted also. This was happening. So it was
कहीं ना कहीं आई हैव गॉट द अंडरस्टैंडिंग कि शायद ये इंडस्ट्री मेरे लिए बनी है एंड मुझे उसके लिए जो चाहिए है वो करूंगा मैं एंड आई विल बी सक्सेसफुल इन दिस इंडस्ट्री. September 2022 to August 2023 I did both of the things because authority builds trust and credibility. Trust and credibility सबसे important है. As a customer जब आपके पास कोई आता है ना, उसको ये दोनों फैक्टर चाहिए रहता है. नहीं तो वो सोचता है कि मुझे रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा. This is the main problem a customer faces. Second was confidence and self-belief. As I said you, I was the top person in completing my book and CWM. And सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है मार्केट में वो है सिर्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ नहीं है. ये दोनों जो वर्ड्स मैंने बोले ना, इसकी बहुत मीनिंग है. आपने शायद सचिन की स्टोरी सबने सुनी होगी, पाकिस्तान वाले मैच की. एवरीबॉडी रिमेंबर्स क्या बोला था सचिन ने? सिर्फ 17 ईयर ओल्ड का एक बच्चा था उस समय, वो उसने क्या बोला था? मैं खेलेगा. डू यू थिंक इट इज इजी फॉर एनीबॉडी टू से दैट? अभी रिसेंट में मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें बोला गया था कि असली जीत उस आवाज को हराने में है जो ये कहती है कि तुम कर नहीं सकते. एंड ये आवाज हमारे अंदर से आती है, हमारे आजू बाजू बहुत आती है. द वर्ल्ड इज वेटिंग टू से यू, अरे रोहित मैंने बोला था तुमसे नहीं होगा, तुम ना कोच बनने मटेरियल नहीं हो. एवरीबॉडी इज वेटिंग टू सी दैट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस रूम, दिस TBM कम्युनिटी हैज द पावर एंड इट हैज द प्रॉक्सिमिटी टू टेल यू कि हाउ यू कैन कम अप. आपको पुल अप करेंगे rather than pulling you down. Confidence you have won even before you have started. बहुत सारे लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते बिकॉज उनके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ नहीं रहता. एंड सेल्फ बिलीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट. अगर आप करोगे ही नहीं तो एक्शंस में आपके आएगा ही नहीं, वो रिजल्ट कहां से आएगा? एंड वी आर ब्लेमिंग द कोचेस. अरे सागर ने मुझे ये नहीं बताया, अरे मुझे सिद्धार्थ ने ये नहीं बताया, अरे उसने ये नहीं बताया. अरे हम कर ही नहीं रहे तो कहां से आएगा? जस्ट अंडरस्टैंड, राइट? नेक्स्ट वाज कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट. कंसिस्टेंसी के बारे में सागर के बारे में सागर को सब जानते हैं, राइट? बट कंसिस्टेंसी के साथ कमिटमेंट जोड़ना बहुत जरूरी है. कंसिस्टेंट में पहले भी था. जब मैंने सितंबर 2022 में स्टार्ट किया, आई वाज कंसिस्टेंट देन आल्सो. 4 वेबिनार किए थे, मुझे लग रहा था कि अपने आप होने लगेगा, नहीं हुआ. बट सितंबर 2023 से I started becoming understanding the meaning of consistent and commitment because ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बेबी है, मुझे इसका टेक केयर करना है, कोई और नहीं आएगा, राइट? जब हम वो पावर अपने अंदर लेते हैं ना, then our action starts changing itself altogether. Nobody tells you कि आप ये करो, आप वो करो, आप अपने आप करने लगते हो. You start understanding the things in different way altogether. मुझे लगता था कि मैं एक जॉब वाला मटेरियल नहीं, want to become a coach, बट मुझे लगने से क्या होता है? Everybody is champion in their homes, right? बट हम लोग वो कैसे बाहर निकालेंगे जब हम लोग कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट दिखाएंगे टुवर्ड्स द ग्रोथ, राइट? टुवर्ड्स आवर बिजनेस, आवर बेबी. बिकॉज हमारा बेबी अगर गलत डायरेक्शन में जाता है तो क्या हम उसे छोड़ देते हैं कि चले जाओ? वी पुल इट अप, राइट? वी मेक एफर्ट सो दैट इट कम्स इन द राइट डायरेक्शन. So that is the reason we require consistency and commitment at the same time. See, all the people who are epitome of success in this industry, maybe Sid, Sagar, Dr. Manjunath, Dr. Sandeep, anybody if you see, they are the epitome of consistency and commitment. किसी की भी जर्नी आप उठा कर देख लो, कोई ऐसा नहीं हुआ कि वन नाइट सक्सेस बन गया है. वन नाइट सक्सेस कुछ होता ही नहीं है. This is the wrong mindset that people have. It takes rigorous commitment and consistency to build that business because अगर वो business ऐसे ही बन जाएगा ना वन नाइट में, तो वन नाइट में टूट भी जाएगा. So it is the most important thing. People have great excuses. मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं बहुत लोगों से बात करता रहता हूँ. लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे एक्सक्यूज हैं. अरे मेरा पेट की ना तबीयत खराब है, मुझे ना वेकेशंस पे जाना है, मेरा मूड नहीं है. अभी आप सोचो, ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ क्या आपको रिजल्ट्स मिलेंगे कि रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे? यू योरसेल्फ अंडरस्टैंड, राइट? हम लोग सबको प्रेम दिया है भगवान ने, हमको सब पता है, बट हम उसको यूज नहीं करते हैं. हम कमिटमेंट नहीं लेते अपने अंदर वो रिजल्ट्स अचीव करने के लिए. दैट इज द रीजन वी डोंट अचीव दैट रिजल्ट. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस विद सो मच कॉन्फिडेंस. सब लोगों को लग रहा होगा कि बोल बच्चन तो नहीं चल रहा है, राइट? मोटिवेशन ज्ञान तो नहीं चल रहा है.
I can say this with ultimate confidence. Why? Because September 2023 till today, I've never missed a single workshop. Every Saturday, even Sundays, I've done my workshop. And उस समय पे there have been times when my mother was ill, when my baby was not feeling well, I was traveling, I was having trainings. मैं MMI की ट्रेनिंग में गया था, मैंने शाम को बैठ के अपना वर्कशॉप किया था. Even today, अभी मैं संडे को जाके अपना वर्कशॉप करूँगा. 7 AM I'll reach my home and 10 AM I'll be in the workshop. Why I'm trying to say is आपको consistency और commitment रखना पड़ेगा. नहीं तो you cannot dream a big business. It will be just a dream. 9 months में एक जैसे baby born होता है. So you can say a good coach can also born. September 2023 से June. It's almost 9 months, right? वो 9 months आपकी जर्नी में कब आएंगे ये आप डिसाइड करोगे. कोई और डिसाइड नहीं कर सकता. कोई आपको सिर्फ इंस्पायर कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, बट एट द एंड you who will be taking this workshop, who will be taking that webinar, who will be taking the one-to-one. एक good news जो बहुत सारे लोगों के साथ मैंने डायमंड में ऑलरेडी शेयर करी थी, but I want to share with all of you is कि जब consistent और commitment रखते हो ना, then nature is there to give you rewards. There were 2 rewards that I want to share. First is जब मैंने 101 के फीवर में वर्कशॉप किया था अपना, I got 5 sales in that workshop. My family was saying कि छोड़ दो वर्कशॉप, नेक्स्ट में कर लेना. मैंने कहा नहीं, मैं करूंगा. There are so many people who are waiting to get that results. I am there to help them. I will do that. And the second thing was, in this weekend, in just 2 days, I completed my 1 month salary. And this has happened in last 2 years only. I want to tell you all. This has happened in last 2 years. But वो last 2 years आपकी जिंदगी में कब आएंगे? You need to decide that. Most of the लोग मैं देखता हूँ, आज भी मैं मिलता हूँ, 6 महीने, साल भर, 2 साल से अपनी निश ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. You understand? We are not starting with the first step. Second step कैसे आएगा? Third step कैसे आएगा? We need to work on that, right? And वो consistency और commitment के साथ ही आएगा. Then you will try to do things and you will understand what is right and what is wrong. Because consistency beats talent every time. Talented आप अपने घर में हो सकते हो, but आपको वर्ल्ड को दिखाना पड़ेगा कि you have that नॉलेज. हम लोग वर्ल्ड क्लास कोचेस अपने आप को बोलते हैं, बट वो वर्ल्ड को कैसे पता चलेगा? जब आप वर्कशॉप लोगे, वेबिनार लोगे, सोशल मीडिया पे सामने आओगे. अदरवाइज हाउ पीपल विल कम टू नो? आपके घर में आके पूछेंगे क्या, आर यू अ वर्ल्ड क्लास कोच, आप मुझे हेल्प करोगे? नो, राइट? सो वी हैव टू बी कंसिस्टेंट इनफ एंड कमिटेड इनफ टुवर्ड्स आवर गोल्स. नेक्स्ट थिंग इज वैल्यू ड्रिवन अप्रोच. वैल्यू ड्रिवन अप्रोच सागर के साथ सब लोग सीख ही रहे हैं, राइट? एंड पहले मैं जब आया था, एज आई टोल्ड यू, सितंबर 2022 व्हेन आई स्टार्टेड, मुझे लगता था यार वैल्यू ड्रिवन क्या होता है, पैसा चाहिए हमको, तो हम करोड़पति बनने आए हैं, यहाँ पे कोच हैं. एंड बट नाउ माय डेफिनेशन ऑफ वैल्यू ड्रिवन हैज चेंज्ड विद टाइम. Talking to Kedar, Sagar, seeing sits and attending these learning events again and again, I have got the mindset that it's not about the transaction that is happening in the terms of money. It's about the knowledge, it's about the value that we are giving to the people who are paying us something. And now the funda of my life is कि अगर मुझे किसी ने 1 रुपये भी पेमेंट किया है ना, फाइनेंस वाला गाय हो ना, तो मुझे उसको 100 रुपीज़ की वैल्यू मिनिमम देनी है. उससे ज़्यादा दूंगा तो अच्छा ही है, बट मिनिमम मुझे इतनी वैल्यू उसको देनी है. उसकी लाइफ में इतनी वैल्यू क्रिएट करनी है सो दैट ही अंडरस्टैंड दैट कि मैंने उसकी लाइफ में क्या चेंज लाया है. रेजर पे ऑफर ऑफ सागर, इसके बारे में बताना चाहता हूँ. सितंबर 2023 का एंड की बात है. आई वाज सर्चिंग, सब लोग बोलते थे ऑर्गेनिक के लिए आप सागर के पास जाओ, तो मैंने कहा कि ठीक है. सागर को आई थिंक मुझे याद है, शायद चिरंजीवी ने मुझे मैसेज किया था फ्लेक्सिबल्स के एक मैसेज में, तो मैंने सागर को देख रहा था. एंड आई वाज अमेज्ड टू सी, जब राजीव का मैंने इतना बड़ा वो देखा कि सागर के बारे में इतना बड़ा उसने मैसेज लिखा है कि सागर हैज डन अ फैबुलस जॉब, दिस एंड दैट. तो मैंने जब रेजर पे का ऑफर बाय करने के, अभी मैंने बाय नहीं किया है, मैं जस्ट बाय करने के लिए सिर्फ ऑफर देख रहा हूँ सागर का. दैट ऑफर वाज सो क्लियर. मुझे समझ में आया कि यार व्हाई पीपल आर गेटिंग रिजल्ट्स. मुझे तो लग रहा था मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? बट इट वॉज वेरियस थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न इन दिस जर्नी दैट विल मेक यू अ वर्ल्ड क्लास कोच. हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास कोच हैं, बट हमें बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है. तो सागर का जब मैंने रेजर पे ऑफर देखा तो मुझे लगा
कि अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया और मेरे को एक सेल आने लगी वर्कशॉप के थ्रू, तो मैं अगर इस मेंटर के साथ जाऊंगा तो मेरी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, और दैट इज ट्रूली हैपनिंग इन माई लाइफ। एंड हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे इस वर्कशॉप में होंगे, यहाँ पे हैं जो शायद टीवीएम से नहीं है, तो अगर आना है, सीखना है तो सागर के पास आ जाओ। सागर आपको बहुत अच्छे से ऑफर क्रिएशन सिखाएगा एंड यू कैन मॉडल हिम। जो भी लोग टीवीएम में है, राइट, आपको कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग ने फर्स्ट सेक्शन में मॉडलिंग की बात करी थी। यू हैव अ ब्रिलियंट मॉडल इन फ्रंट ऑफ अस, उसको मॉडल करो ना। आई हैव डन द सेम, केदार हैज डन द सेम एंड वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। आपको क्यों नया ढूंढना है? दैट इज द प्रॉब्लम वी फेस। हम लोग नया ढूंढते रहते हैं एवरीवेयर, राइट? सो वैल्यू ड्रिवन अप्रोच वर्क्स एवरीवेयर, वेदर इट इज स्टॉक मार्केट और वेदर इट्स लाइफ। लाइफ लॉन्ग लर्नर एंड करेज। सबको पता है कि बहुत सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। एवरीबॉडी इज मूविंग फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अदर कम्युनिटी। अरे मैं ऑर्गेनिक सीख लेता हूँ, अभी फेसबुक एड सीख लेता हूँ, अभी ये सीख लेता हूँ, अभी वो सीख लेता हूँ। सब सीखे जा रहे हैं, एक मेंबरशिप से दूसरी मेंबरशिप हम करते जा रहे हैं, बट नोबडी इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट। एनीबॉडी नोज द आंसर? कोई बता सकता है? व्हाई? Courage, because you don't have the courage to fail. कोई फेल नहीं होना चाहता। हमको बचपन से अच्छे नंबर्स की आदत है, राइट? हम चाहते हैं कि हमें बस अच्छे नंबर मिले। Nobody wants to fail in real life. That is the reason they don't implement. And I am telling you, आपको अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है ना, तो आपको फेल होना पड़ेगा। फेल नहीं होगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो अप्रोच चलेगी कि नहीं। बट आप बाद में 2-3 साल बाद जरूर ये सोच सकते हो, काश मैंने वो ट्राई किया होता तो शायद मेरी लाइफ अच्छी होती। बट काश का कोई फायदा नहीं है। कीप लर्निंग बट डेयर टू ट्राई एज वेल। इट्स ओके टू फेल, बट इट्स नॉट ओके टू एक्सेप्ट डिफीट विदाउट ट्राइंग। दैट इज मोस्ट ऑफ द पीपल डूइंग, दे आर एक्सेप्टिंग द डिफीट। अरे मेरे से नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है। बिकॉज टैलेंट इज कंटिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ। जब तक आप कंटिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ नहीं आ रही आपकी लाइफ में, आप कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट होने वाली है आपकी जर्नी। You believe it or not, but it is ultimate truth of life. Now, the last and the most important part is impact on the bigger why. Why is just a 3-letter word. Everybody thinks यार why से क्या होता है, छोटा सा तो word है, but why has immense meaning. अगर वो आपकी लाइफ में क्लियर नहीं है ना, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। I'm very sorry to say that, because when the why is clear, how becomes easier for everybody. मेरी लाइफ में मेरा why है मेरी डॉटर, मेरा why क्लियर है, तो मेरे एक्शंस अलग लेवल पे रहेंगे। मेरा हाउ अपने आप क्लियर हो जाएगा। मुझे यहाँ नहीं सीखने मिलेगा, मैं वहां सीख लूंगा, बट मैं करके रहूंगा। ये मेरे अंदर कमिटमेंट है एंड ये कमिटमेंट हमारे अंदर लाना पड़ेगा। लेट अस फाइंड योर व्हाई। आई वुड लाइक टू ऑल टू डू एन एक्सरसाइज, अ सिंपल एक्सरसाइज। फर्स्ट थिंग इज, व्हाट इज योर विजन एज अ कोच? आई नो अभी सब लिखना चालू करेंगे, सिद्धार्थ ने सिखाया है। आई want to help 100,000 common people live life of this, right? सबको याद है, कोई भूला तो नहीं है? But you need to ask yourself, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप से पूछना है, do you believe in that? 2 साल पहले मैं भी लिखता था, but now I can say with ultimate confidence and conviction कि I truly believe in that, and that is the reason मैं उस conviction के साथ हर चीज करने के लिए रेडी हूँ, जिससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा and people will come up to me for results. So you need to ask yourself, do you have that conviction to write that? Second thing, what is the personal vision? ये सबसे ज्यादा मिसिंग है लोगों के अंदर, and that is the reason people are not able to take actions and achieve the results that I have understood during this journey, talking to various people, talking to various coaches. Because personal vision जब तक लिंक नहीं होगा, आप कभी भी एक्शन लोगे नहीं। अरे ये फेल हो गया, चलो छोड़ देते हैं, कुछ और नया ट्राई करते हैं। नहीं ढूंढते हैं, नया कोच ढूंढते हैं। अब ढूंढते रहो, जिंदगी निकल जाएगी, बट आगे कुछ होगा नहीं। Why? Because you don't have a personal vision linked to it. So ask yourself, what is the personal vision that you want to have for your family? दिमाग में है पॉइंटर्स, राइट, कि मुझे ये करना है, आप करते रहोगे, बट उसके साथ एक पर्सनल गोल लिंक होना चाहिए, तभी वो एक आप अचीव कर पाओगे। How you do one thing is how you do everything, because हर एक एक्शन में वो रिफ्लेक्ट करेगा, हर एक इंटेंशन में वो रिफ्लेक्ट करेगा। How we can see Sagar, right? Everywhere you can see the same thing. अगर वो intention नहीं रहेगा तो, because everything starts with why and ends with why. जीवन में why नहीं है तो आप कभी भी कुछ action लोगे नहीं, और लोगे तो with half-hearted रहेगा हमेशा। So explore your why,
everybody. So 3 to success, as we discussed: consistency, commitment, and courage. Consistency to keep learning and applying in my life. Commitment to try and sometimes fail. Commitment and courage to try and fail, and ready to bounce back. Because bounce back बहुत strong होगा अगर आपके अंदर वो वाय और ये सारी चीजें क्लियर होंगी, right?